Hello, good morning, students. We are discussing WTO, World Trade Organization. In the earlier lectures, we discussed history of WTO, objectives, commitments of India to WTO, etc., etc. In the last video lecture, we discussed what are the advantages to India from the membership of World Trade Organization. Increase in foreign trade, increase in agricultural export, improvement in services, inflow of foreign investment, etc., etc. There are many advantages from the membership of WTO to India, but there are some disadvantages. ये argument है in favor of the membership of WTO. So we will also discuss what are the disadvantages from the membership of WTO. इंडिया को क्या डिसएडवांटेजेस हुआ? फर्स्ट, डिसएडवांटेजेस टू एग्रीकल्चरल सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर जो कमिटमेंट्स हुए हैं उसमें सबसे पहला कमिटमेंट था एग्रीकल्चरल सेक्टर का. सो इंडिया हैज मेड कमिटमेंट with WTO regarding agricultural sectors in many areas. Due to the commitment of with WTO, on the one hand, it is एक तरह से ये हो गया है कि Indian farmers have to depend on multinational companies for seeds, for fertilizers, for pesticides, etc., etc. क्योंकि अगर आपको इंपोर्ट करना है तो डेवलप कंट्रीज से इंपोर्ट करना है, सो फार्मर्स हैव बिकम डिपेंडेंट ऑन एमएनसीज. सो इंडिया में कॉस्ट इज हाई, सो इंडिया में दिस प्रोडक्ट्स कैन बी अफोर्डेड ओनली बाय रिच फार्मर्स. तो मार्जिनल फार्मर्स और स्मॉल फार्मर्स का क्या होगा? उनके लिए दिक्कत हो गई. स्मॉल फार्मर्स एंड मार्जिनल फार्मर्स आर नॉट इन पोजिशन टू import such products from the foreign countries. वो डिटेल में हम डिस्कस करेंगे, ज्यादा ख्याल आएगा आपको कि डिसएडवांटेजेस को हम लोगों ने क्या. फर्स्ट, रिडक्शन इन सब्सिडी. डेवलप नेशन की आर्ग्यूमेंट क्या है? डेवलप नेशन की आर्ग्यूमेंट ये है कि डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया, इट इज गिविंग many kind of subsidies to farmers. इलेक्ट्रिसिटी में सब्सिडी देंगी, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, एक्सेट्रा. एंड ड्यू टू सब्सिडी their cost of production is relatively low. So our commodities are not in position to stand against the agricultural products of the developing countries like India. So India को सब्सिडी रिड्यूस करना ही पड़ेगा. So we have made commitment कि हम लोग ये फेजिस में सब्सिडी रिड्यूस करेंगे. मगर प्रॉब्लम क्या है कि इवन टुडे अबाउट 42% पीपल आर डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर फॉर एम्प्लॉयमेंट. अगर हम सब्सिडी रिड्यूस करेंगे तो ऑब्वियसली कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा एंड प्राइस ऑफ आवर प्रोडक्ट्स विल इंक्रीज इन इंटरनेशनल मार्केट. सो फार्मर्स विल इन लॉस. सो सब्सिडी रिड्यूस करने के कमिटमेंट को इंडियन फार्मर्स के लिए, खास करके स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स के लिए काफी नुकसान हुआ है. Second, import of food grains. After becoming member of WTO, we have made commitment that national treatment. We cannot make discriminate between the imported goods and the domestic goods. So, एग्रीकल्चर के कमिटमेंट के लिए हम लोग फूड ग्रेन्स का भी इंपोर्ट करने का स्टार्ट कर दिया है. We are also starting import of food grains. One of the biggest limitations of agricultural market in India is that on the one hand, farmers are not getting fair price of their produce. On the other hand, consumers have to pay very high price of agricultural product. अगर इसी सिचुएशन में हम लोग फूड ग्रेन का भी इंपोर्ट करेंगे तो क्या होगा? डिमांड सप्लाई का इम्बैलेंस हो जाएगा और farmers have to suffer a lot. So this is also the limitation of agriculture, because we have also given permission to import of food grains. Next, plant breeding protection. This is very, very important issue. We have discussed in the earlier lecture that
We have made commitment in intellectual property rights, trade related intellectual property right, TRIPS. उसमें क्या है कि अगर कोई कंपनी कोई रिसर्च करे, उसका पैटेंट करवाए, तो उसको 20 इयर्स तक कोई यूज नहीं कर सकता, और जो कंपनी यूज करेगी, जो एक कंट्री यूज करे, उसको रॉयल्टी देनी पड़ेगी. ऐसी एक है प्लांट ब्रीडिंग प्रोटेक्शन. प्लांट ब्रीडिंग प्रोटेक्शन किया हुआ अंडर sui generis system. Sui generis. What is sui generis? A one that is of its own kind. मतलब these are the international laws to protect the generic resources or the biodiversity, maybe biotechnology. Okay? So developed countries से अगर कोई डेवलप कंट्री में कोई कंपनी और कोई ऑर्गेनाइजेशन अगर न्यू प्लांट की कोई ब्रीडिंग करे, सो ऑब्वियसली आर कंपनीज और हमारे फार्मर्स को उनको रॉयल्टी देनी पड़ेगी. सो ऑब्वियसली जनरली ये एग्रीकल्चर रिसर्च ज़्यादातर डेवलप कंट्रीज में इतने होते हैं. सो ऑब्वियसली आर फार्मर्स हैव टू पे हायर प्राइस फॉर दिस प्रोडक्ट, बिकॉज उनको क्या है, उनको अभी फॉरेन कंपनीज को रॉयल्टी देनी पड़ेगी. ओके, सो दीज आर द डिसएडवांटेजेस अगेंस्ट एग्रीकल्चर सेक्टर्स आफ्टर बिकमिंग मेंबर ऑफ WTO. आई एम रिपीटिंग, सब्सिडीज को हमको रिड्यूस, वी हैव टू रिड्यूस सब्सिडीज. सो वी हैव ऑल्सो परमिटेड इम्पोर्ट ऑफ फूड ग्रेन्स और प्लांट ब्रीडिंग प्रोटेक्शन जो सुई जनरिस सिस्टम है, इसके अंतर्गत भी हमको फॉरेन कंपनीज को रॉयल्टी देनी पड़ेगी. नेक्स्ट, लॉस ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्री. It is of course true that after becoming the member of WTO, India has established relation with another 163 countries, because 164 members of WTO, so हमारा automatically relation हो गया है 163 countries के साथ. But as we have opened up our economy for multinational companies, तो उन्हें वहाँ से डोमेस्टिक फॉरेन गुड्स भी आने स्टार्ट हो गए हैं. We have permitted foreign companies to enter India. We have also permitted to import of foreign products, etc. और हमारा कमिटमेंट है that you cannot make discrimination between the domestic goods and foreign goods. तो ये हमारे जो products हैं, they are not up to the standard or the quality of the foreign products. Developed countries के जो products हैं, this is in quality, in finishing, it is much better than the products of developing countries. So our industries are not in position to stand against it. Particularly small scale industries, medium scale industries have to suffer due to this loss of domestic goods. Patent of Indian herbs by foreign countries. This is very, very important point. Patent right है. TRIPS के अंतर्गत हमने कॉपीराइट एक्ट किया. We have made amendment in Copyright Act, then Patent Act and Trade and Merchandise Act, etc. We already discussed. मगर प्रॉब्लम क्या हुआ है कि many companies, particularly American companies, have taken patent of Indian herbs like haldi, tulsi, neem, basmati rice, etc. etc. तो ये जो पेटेंट हुआ है, सो इट इज इंटरनेशनली इट इज ओके कि अगर कोई रिसर्च करे, अगर कोई नया इन्वेंशन करे, तो उसको पेटेंट मिलना चाहिए, उसकी रॉयल्टी उसको मिलनी चाहिए. गुड. बट द कंपनीज, व्हाट कंपनीज हैव डन, द कंपनीज हैव टेकन पेटेंट ऑफ आर हर्ब्स विच हैव बीन यूज्ड फॉर मेनी इयर्स बाय इंडियन, ट्रेडिशनली यूज हो रहा है. एक आपको मैं उसका 2-3 एग्जाम्पल लेता हूं कि उन्होंने टर्मरिक, हल्दी की पेटेंट करवाई थी. सो वी हैव चैलेंज द पेटेंट ऑफ हल्दी इन 1995 कि हल्दी का जो यूज है, हम लोग बरसों से, पीढ़ियों से हम लोग करते आए हैं. किसी को अगर चोट लग गई तो हल्दी का लेप लगाए, दूध में हल्दी डालना है. हमारी विको कंपनी हल्दी चंदन का गुण समाए, एक्सेट्रा. अगर अमेरिकन कंपनी को पेटेंट मिल जाए तो फिर हम लोगों को ये सारे यूज के लिए भी उनको रॉयल्टी देनी पड़ेगी. सो वी हैव मेड चैलेंज इन 1995 एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज वन, और हमने ये पैटेंट कैंसिल करवाई. मतलब वो हमारे, मतलब इट इज परमिटेड दैट वी कैन यूज हल्दी विदाउट मेकिंग एनी, विदाउट पेइंग एनी रॉयल्टीज टू पर्टिकुलर अमेरिकन कंपनी.
ऐसा ही एक किस्सा हुआ था बासमती राइस में. वन अमेरिकन कंपनी हैज टेकन पेटेंट इन बासमती और उन्होंने नाम लिया टेक्समटी एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ओके, सो बासमती राइस का भी हम लोगों को सालों से यूज करें. सो वी हैव ऑल्सो टू चैलेंज ऑल दिस पैटेंटेड प्रोडक्ट बाय फॉरेन कंपनीज. वो इतना इजी नहीं है अगर आप चैलेंज करें और इंटरनेशनल कोर्ट एक ही दिन में मान जाए, ऐसा तो नहीं है. ओके, सो दिस इज ऑल्सो द डिसएडवांटेजेस फ्रॉम Indian point of view, that foreign companies have taken patent of such products which have been used by Indians for years together, many years use kar rahe hain. Okay, so this is also the disadvantages of WTO. Effect on prices, अभी हमने लिया कि certain products like pharmaceutical products, medicines है, food grains है और important chemicals है. If foreign companies have taken patent of all these things, तो क्या करना पड़ेगा कि हमको वो प्राइस उनको, मान लीजिए कि पहले एक एक्स प्रोडक्ट है, उसकी प्राइस 800 रुपीज थी. नाउ दिस प्रोडक्ट हैज बीन पेटेंटेड बाय पर्टिकुलर कंपनी और हमको रॉयल्टी के लिए भी उसको 50 रुपीज देना पड़ेगा. तो अभी उसकी सेम प्रोडक्ट की, सेम मेडिसिन की प्राइस कितनी हो जाएगी? 150. सो ड्यू टू इंटरनेशनल लॉ, ड्यू टू दिस पेटेंट राइट एंड ऑल दिस थिंग्स, द प्राइसेस ऑफ सच प्रोडक्ट्स इंक्रीज्ड. इंक्रीज इन लिटिगेशन कॉस्ट, अभी हमने देखा है कि फॉरेन कंपनीज ने हमारी हब्स की पैटर्न, तो उसके लिए लिटिगेशन फाइल करना पड़ा. ओके, इंटरनेशनल कोर्ट में. दैट मैनी फॉरेन कंपनीज हैव फाइल्ड केस अगेंस्ट इंडियन कंपनीज दैट दे आर ब्रेकिंग द रूल ऑफ कॉपीराइट एक्ट. उन्हें कॉपीराइट एक्ट ब्रेक कर रहे हैं, वो पेटेंट राइट को फॉलो नहीं कर रहे हैं. ऐसा इंटरनेशनल लॉ में उन्होंने, इंटरनेशनल कोर्ट में उन्होंने कंप्लेन की. ओके, टू प्रूव आवर इनोसेंस, Indian companies have also to pay very high prices to foreign lawyers, क्योंकि इंटरनेशनल कोर्ट में से जस्टिस करना, दिलाना इतना इजी नहीं है. ओके, वी हैव टू हायर इंटरनेशनल लॉयर्स. ओके, वी हैव टू मेक फाइल केस अगेंस्ट दिस कंपनीज टू प्रूव दैट वी हैव नॉट ब्रोकन द कॉपीराइट एक्ट और वी हैव नॉट ब्रोकन द पेटेंट एक्ट. ओके, मान लीजिए कि हमारी कोई एक यूएसए की कंपनी है, उसने इंडियन कंपनीज के अगेंस्ट में केस किया है और हमको यूएसए में उसको वो लॉयर है, उसको $50,000 देना है. $50,000 है यूएस करेंसी में, मगर इंडियन कंपनीज के लिए तो वो मोर देन 35 लाख रुपीस हो जाएगा. ओके, सो वी हैव टू पे वेरी हाई कॉस्ट फॉर लिटिगेशन अगेंस्ट, लिटिगेशन कॉस्ट इंक्रीज हुआ है टू प्रूव आवर इनोसेंस दैट वी हैव नॉट मेक एनी माल प्रैक्टिसेस इन Copyright Act or Patent Act. Issue of social cost, environment cost and labor cost. This is very very important. This is against ये developed country का ये problem है. Developed countries always argue that in developing countries like India, labor cost is very low compared to, because salaries are generally relatively low in developing countries in India in compared to developed nation. Second, उनका आर्ग्यूमेंट है that they are not following the strict law again about strict environmental. वो environment का जो pollution है उसमें हमारे जो law है वो developed countries से इतने strict नहीं है. Of course it is true कि so ये when we compare Indian companies and foreign companies, foreign companies have to pay very high cost to protect environment. Labor cost is भी उनका बहुत high है. So their cost of production, there is difference in cost of production. अगर cost of production में difference होगा तो what developed countries were demanding in particularly Doha conference कि ये difference होने के बाद developed countries should have right to impose additional tariff on the products of developing nation like India. हमको डेवलपिंग नेशन के ऊपर ज्यादा टैरिफ लगाना पड़ेगा, बिकॉज दे आर नॉट गिविंग हाई सैलरीज टू देयर एम्प्लॉइज, दे आर मेकिंग वेरी लेस एक्सपेंडिचर टू मेंटेन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन. ये आर्ग्यूमेंट सुनने में अच्छा लगेगा, मगर व्हेन वी एनालाइज द फैक्ट, ये आर्ग्यूमेंट करेक्ट नहीं है. क्योंकि हम लोग जानते हैं कि देयर आर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन: लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर.
जैसे हमारे यहाँ लेबर कॉस्ट ज्यादा है, उनका कैपिटल का कॉस्ट ज्यादा है, क्योंकि हमारे यहाँ सैलरी कम है मगर इंटरेस्ट ज्यादा है. In compared to USA, salary is relatively low, but interest too high hai. Okay, so only by to produce a given commodity, we need 4 factors of production: land, labor, capital, and entrepreneur. Only by appointing laborers we cannot produce. हमको capital भी investment भी करना. So उनका argument गलत है. Second, कि we are in the initial stage of development. यूएसए ने जो डेवलपमेंट किया है, यूरोपियन कंट्रीज ने जो डेवलपमेंट किया, उन्होंने सारे एनवायरनमेंट के लॉ को प्रोटेक्ट करके ही किया है? नो, एब्सोल्युटली नॉट. अभी भी दुनिया में सबसे ज्यादा अगर कार्बन को कोई ओमिट कर रहा है तो वो यूएसए है. ओके, सो ऑब्वियसली वी आर फॉलोइंग द लॉ ऑफ एनवायरमेंटल एक्ट एक्सेट्रा. मगर हम लोग इतना स्ट्रिक्ट अगर करेंगे तो हमारी कंपनीज बंद हो जाएगी, तो हमारा प्रॉब्लम अनएम्प्लॉयमेंट का हो जाएगा. ओके, गेटिंग माय पॉइंट? So therefore, we are not in position to implement strict environmental laws for our companies. Okay, so ये argument चला नहीं, और ये argument में भी Muras Ali, if I am not mistaken, Muras Ali Maran was the commerce minister and he has presented India's point of view in a Doha conference very well. Next, loss of regional grouping. Regional grouping है जैसे SAARC है, साउथ एशियन वाला, एशियान है, नाफ्टा है, उनका रीजनल ग्रुपिंग क्या? दिस इज फॉर पर्टिकुलर रीजन ऑफ कि उनके कंट्री के लिए थे. मगर व्हेन यू बिकम मेंबर ऑफ WTO, यू हैव टू फॉलो द मोस्ट फेवर्ड नेशन क्लॉज. सो यू कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट योर मोस्ट फेवर्ड नेशन एंड अदर मेंबर्स ऑफ द WTO. सो उनका जो रेलेवेंस है वो कम हो गया. ओके, so these are the points of disadvantages of WTO. I am repeating. Agriculture sector को disadvantage हुआ है. There is a loss for our domestic industries due to patent right has been taken by many foreign companies of our herbs. So we have to suffer. Price increase हुआ है, increase in litigation cost, this the issues regarding environmental cost, social cost, etc., and loss of regional grouping. मतलब उनका relevance इतना अभी कम हो गया. Okay, these are the points of disadvantages from the membership of WTO. आज के लिए इतना रहेगा. Thank you very much.